Hi Ashish, good morning, and let me thank you for sparing your time this morning on Sunday, and I'm really thankful to you for that. Good morning, sir. Okay, Ashish, you cleared this exam of HPCL last year, and you are presently in HPCL posted in Maharashtra, and you are from Uttar Pradesh. And Ashish, now you know HPCL has also declared their exam this year, 2022. Yes, So sir. students are in process of writing this exam now, and this my entire interaction will be in the direction of your own experience, how to clear this exam and what kind of things a student should consider in their mind, and some idea about the previous exam also, like cutoffs and all, how it was. So we will be discussing in that direction only. So Ashish, I start with your background first. आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं, और आपने जब ये एग्जाम लिखा तो उससे पहले आप क्या कर रहे थे, आपने गेट वगैरह भी लिखा होगा, तो Yes, sir. ये एग्जाम में कैसा रहा था आपका परफॉर्मेंस, कट ऑफ्स वगैरह और आपका स्कोर वगैरह कैसा था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. So myself Ashish Misra, and I did my engineering from NIT Jaipur, and I got placed in Bharat Aluminium Company, which is a part of Vedanta Group. And there I did a 2-year work as assistant manager in utility department of that company. And it was a dream of every aspirant or every engineering student to join a Maharatna PSU. From college days, I am aspired to join a Maharatna company. After placement, it was in my mind to join Maharatna PSU. I started preparing from there itself. Whenever I get time to study, I used to study after working hours in Balco. Okay. So what is happening in that time? Everyone prepare for some exam, but the thing what happens, everyone reach up to the cutoff. The final touch is not coming. So in my case, I have written almost 30 PSU exams and also GATE exam, but the final touch is not coming. So that's why in 2020 I quit my job to get that final touch. So I fully prepared. I have started fully preparing for PSU exams and GATE also. In 2021, I cleared GATE with a good marks and got a call from IOCL. I gave interview of IOCL also, but I didn't make in final list. So in that time also, that time HPCL notification was there. So I thought that I can clear this exam because I have prepared, and I have in mind that I can clear this exam. So basically क्या होता है कि जैसे PSU के जो एग्जाम होते हैं उसमें थोड़ी स्ट्रेटजी अलग होती है, और जो गेट के एग्जाम्स होते हैं उसमें स्ट्रेटजी अलग होती है. जैसे गेट के एग्जाम्स होते हैं उसमें न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, बिकॉज आपको 65 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद इन 180 मिनट्स. तो और PSU के एग्जाम में क्या होता है, आपको 170 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 150 मिनट्स में. तो यहाँ पे आपको एकदम एक्यूरेट होना पड़ेगा PSU के एग्जाम्स में. तो इसमें क्या होता है कि आपका जो एप्टीट्यूड पोर्शन होता है, आधा 0.5% एप्टीट्यूड पोर्शन रहता है और हाफ आपका टेक्निकल रहता है. तो HPCL का पैटर्न जो था 170 क्वेश्चंस थे, जिसमें 85 क्वेश्चंस टेक्निकल और 85 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश. सो आपको इन पोर्शंस में अच्छा होना है, इन पोर्शंस में भी अच्छा होना है, एप्टीट्यूड में भी अच्छा होना है, आपको इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन भी अच्छा होना चाहिए. क्योंकि अभी क्या है, रिसेंटली 2 साल में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से काफी लोगों को निकाला भी गया है. आपको भी पता होगा ऐसे कोविड सिचुएशंस में. तो मार्केट में एक इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि कट ऑफ बहुत हाई जा रहे हैं किसी भी एग्जाम के, और वैकेंसी भी कम आ रही है. तो आप किसी भी एग्जाम को लेंगे तो उसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा है. तो आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी. आप किसी भी पोर्शन, अपने वीक पोर्शन को भी आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा. आप ये नहीं कर सकते कि अपना ये मेरा चैप्टर रेडी नहीं है या ये मेरा पोर्शन तैयार नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं. ऐसा नहीं कर सकते आप. आपको उस पोर्शन को भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फाइट करनी, कंपटीशन फाइट करनी है. कट थ्रोट कंपटीशन आप मान लीजिए हर एक एग्जाम में है. तो बेसिकली आपको एप्टीट्यूड बहुत अच्छा करना पड़ेगा, इंग्लिश अच्छा करना पड़ेगा, और आपको लॉजिकल रीजनिंग, टेक्निकल भी आपको वन लाइनर जैसे आप रेडी कर सकते हैं. जैसे ESC के प्रीवियस ईयर को प्रिपरेशन कर सकते हैं आप. पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर लीजिए, उसमें से वन लाइनर रेडी कर लीजिए. आप गेट के वन लाइनर क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के आते हैं वो रेडी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन ESC और गेट के प्रीवियस ईयर से HPCL में या किसी भी PSU एग्जाम का पैटर्न लगभग सेम ही रहता है. तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 50 to 70% प्रीवियस ईयर रहते हैं. और आप YCT का एक बुक आता है,
वन लाइनर का, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। तो इससे आपका क्या टेक्निकल पोर्शन अच्छा हो जाएगा। तो आप ये ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक वगैरह टेस्ट सीरीज लॉन्च रहता है, आप आपके वेबसाइट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, योरपीडिया के थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज से अपना चेक कर सकते हैं नॉलेज, उसमें कैसा तो ये परफॉर्म कर। टेस्ट लगाना और टेस्ट सीरीज लगाना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस सर, यस सर, करनी चाहिए वो बच्चों को, और करनी चाहिए। भी करते रहनी चाहिए। अपने आप को चेक करना करना चाहिए, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, हम्म, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग पढ़ते रहते हैं, उनको लगता है मैं अच्छा परफॉर्म कर लूंगा, बट जब टेस्ट देने बैठते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां गलतियां कर हो देते हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलती कर देते हैं, जो वो बाद में सोचते हैं ये मुझे करनी नहीं चाहिए थी, तो मुझे आता है। जाती। यस तो यस वो उन मिस्टेक्स को दूर करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, उसके बाद टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट की प्रिपरेशन में भी टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। और तो बात भी आपको, सही है कि जैसे अलग अलग टेस्ट सीरीज अगर आप ले लेते हो, इंस्टीट्यूट बनाते हैं अपना, और आजकल तो बहुत चीप भी आती हैं, 200-400-500 रुपए में लोग दे हाँ रहे हैं, हाँ, तो कोई ट्रबल नहीं है उसका। लेकिन ये है कि आप लेने के बाद उनको लगाओ, मतलब दैट इज लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। लगाओ, उसके बाद लगाने का एनालिसिस करो, आप गलती कहाँ कर रहे हो। हाँ एक पेपर हाँ में लिखो आप गलती कहाँ कर रहे हो, उसको हाँ मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करना है आपको। हाँ हाँ हाँ, दैट इज तो ट्रू। इससे इससे क्या, हाँ, गो अहेड। हाँ, तो फिर इसके बाद क्या है, टेक्निकल पोर्शन आपका रेडी हो जाएगा, जो इससे बताया। और एप्टीट्यूड में भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। एप्टीट्यूड में आप देखेंगे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस सिली मिस्टेक्स लोग कर देते हैं। उसको आप सिली मिस्टेक्स को रोकने वो के लिए आप अवॉइड प्रैक्टिस प्रैक्टिस करिए, एप्टीट्यूड का अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मतलब प्रैक्टिस एप्टीट्यूड का कोई अल्टरनेट नहीं है, प्रैक्टिस करना नहीं बहुत सर, जरूरी है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आशीष, एक जो क्योंकि बहुत ही कॉमन मिस्टेक बच्चों में देखने को मिला है, वो ये है कि वो ना किसी भी एग्जाम की पढ़ाई में बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन टेस्टिंग में टाइम नहीं लगाते। मतलब पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन जहां टेस्ट लगाने की बात आती है ना, अपने आप को चेक करने की बात आती है, वो चीज नहीं करते हैं, और वही चीज उसकी एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस को गिरा देती है। यस सर, तो मैं क्योंकि आपसे ये भी आपको फाइनली जाके व्हाट टेस्ट कैन ही बी द देना है। बेस्ट टाइम कि वो टेस्टिंग कब दें और किस फ्रिक्वेंसी पे टेस्टिंग अपने आप को करें? हाँ सर, जैसे कि किसी की अभी अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए 3 महीने बाद एग्जाम है, तो अभी से उसको टेस्ट देना पड़ेगा। अभी से टेस्ट देना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि अगर उसका नॉलेज प्रीवियस अभी पहले से ही तैयारी कर रखा होगा उसने, एचपीसीएल का या किसी अदर एग्जाम्स का, वो ऑलरेडी प्रिपरेशन फेज में होगा। तो अभी 3 महीने बचे हुए हैं अपने अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी जो गलतियां हैं उसको दोबारा रिपीट ना हो। अभी से टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब चैप्टर अगर एक एक अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहा है, तो उस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दे, तो उसमें से क्या गलतियां वो कर रहा है, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते रहे। और एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश का भी टेक्स्ट बुक वगैरह में आता है, उसको भी हाँ, नॉलेज चेक करते रहे। तो तो अपना ये टेस्टिंग अगर होता रहे तो उसको बेनिफिट हो जाएगा। बिल्कुल बेनिफिट होगा, क्योंकि वो दोबारा मिस्टेक नहीं करेगा। तो दैट इज ये वंडरफुल। बहुत अच्छी चीज है इसमें, कि टेस्ट बहुत जरूरी है, टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। अच्छा आशीष, आपने दोनों ही एग्जाम्स को क्रैक किया, गेट भी और ये एचपीसीएल भी, और आप इंटरव्यू तक भी गए महारत्ना कंपनीज के, आईयूसीएल का भी इंटरव्यू आपने दिया। तो गेट और एचपीसीएल का एग्जाम, Yes, रिटन sir. एग्जाम में तो टोटली डिफरेंट है। तो क्या स्टूडेंट अभी जैसे एचपीसीएल का आया है एग्जाम, तो उसको कैसे उस तरीके से बैलेंस करे, किस तरीके से अपनी अप्रोच रखे? Yes, Ashish. So how a student can keep his approach for this? यस सर, गेट गेट की स्ट्रेटजी थोड़ा डिफरेंट है। गेट में न्यूमेरिकल्स जो होते हैं कॉन्सेप्चुअल आते हैं। तो गेट की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं अभी से, जैसे अभी जुलाई चल रहा है, तो गेट की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, उनका उनका टाइम पीरियड लगभग 5 to 6 मंथ अभी रिमेनिंग है। हाँ जी, 5-6 मंथ रिमेनिंग है। और एचपीसीएल का जो एग्जाम होने वाला है, मे बी ये 2 से 3 महीने में हो जाएगा। हाँ जी, 2 से 3 महीने में। तो सही है। अभी उनका उनका जो फोकस होना चाहिए, गेट के वन लाइनर क्वेश्चन पे होना चाहिए। अच्छा, और साथ साथ आप पीएससी के प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं, क्योंकि गेट में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। वो वन लाइनर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, एप्टीट्यूड भी 15 मार्क्स का आता ही है गेट में आपके। सही है, एप्टीट्यूड भी 15 मार्क्स का आता है, और वन लाइनर भी अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स से आते हैं। तो सही ये है। 30 मार्क्स आपके रेडी हो जाएंगे विद इन 2 मंथ। अब अभी 2 मंथ आप वन लाइनर को दे सकते हैं और एप्टीट्यूड को भी दे सकते हैं, जिससे कि एचपीसीएल की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। और अदर पीएसयू का भी अगर कोई नोटिफिकेशन आया होगा, वो भी हो जाएगा। ओके। साथ साथ आप ये भी कॉन्सेप्ट भी रेडी कर सकते हैं, जैसे गेट में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी आपको यूजफुल हो सकते हैं एचपीसीएल के लिए। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, आपको थ्योरी आती है, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
ओके। तो अभी न्यूमेरिकल जो लेंदी न्यूमेरिकल होते हैं उन पे फोकस कम करके आप कॉन्सेप्ट पे थोड़ा फोकस करिए और थ्योरी पे थोड़ा फोकस करिए अभी 2 महीने, जो अभी कमिंग 2 मंथ्स है। उसके बाद आप न्यूमेरिकल अप्रोच लगा सकते हैं, जो अब आपके कॉन्सेप्चुअल जो अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं गेट में, उसके बाद आप लगा सकते हैं। लेकिन आप ये 2 मंथ जो कमिंग 2 मंथ्स है, ये आप HPCL और ये इससे आपके गेट के भी 30 मार्क्स कवर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी कवर होंगे, थ्योरी भी कवर गेट के लिए कवर होगी। उसके बाद आप न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं गेट के लिए। उसके बाद 4 से 5 महीने बचेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं उधर। तो पूरी तरह से मतलब HPCL की तरफ भिड़ जाना चाहिए अभी। हाँ, अभी अभी सिचुएशन में HPCL की तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये भी कंपटीशन टफ है, इसको आसान नहीं लेना है, ऑब्वियसली टफ है, एवरीथिंग इज बेस्ट टफ। कंपनी बेस्ट जॉब है ना, अगर आपको HPCL गेट के थ्रू निकालनी है तो 100 के अंदर रैंक चाहिए, तो मतलब हाँ, ये हाँ तो टफ तो है ही, ऑब्वियसली पूरा इंडिया चाहता है ऐसी जॉब्स देना। यस सर, तो महाराष्ट्र कंपनी में जाना ही टफ है। तो टफ है तो आपको आपको हल्के में नहीं लेना किसी चीज को कि चलो कर लेंगे, गेट की तैयारी कर लेते हैं, अभी HPCL भी निकल ही जाएगा साथ में, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हर एक एग्जाम की स्ट्रेटजी अलग है, तो आपको HPCL के लिए ही फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें मेरे को आशीष ये बताइए कि कट ऑफ्स वगैरह कितना गया था आपके टाइम पे इसमें HPCL वगैरह में? जो वैकेंसी रिलीज हुई थी 120 वैकेंसी थी मैकेनिकल की। ओके। तो उसमें से 170 मार्क्स में लगभग 148 मार्क्स गया था जनरल कैटेगरी कट ओके। ऑफ ओके। और 120 सीट्स। ओके। बट एक्चुअली क्या हुआ था, इन्होंने सीट बढ़ा दिया था, तो लगभग 149 सीट कर दिया था लास्ट ईयर। अच्छा। तो वो कट ऑफ था, फाइनल कट ऑफ था 148.33 फाइनल अच्छा। कट ऑफ हाँ, जनरल कैटेगरी। तो आप ये बोल रहे हैं कि पिछली बार 120 कट इन्होंने निकाली थी सीट्स, और वो 120 को बढ़ा के 150 कर दिया था, इज दैट व्हाट यू आर यस सर, सेइंग? ओके। 149 कर दिया था, क्योंकि अच्छा, ये तो लोग ये सीट बढ़ा सकते हैं। अच्छा मतलब तो ये बढ़ाने का रीजन क्या होता है, मतलब जितनी वैकेंसीज और आ गई उतना इन्होंने ऐड कर दिया होगा? ऐड कर दिया, उसमें वैकेंसी उनकी रिक्वायरमेंट होगी दूसरी लोकेशंस पे, तो उन्होंने फाइनली ऐड कर दिया, क्योंकि ये HPCL पहले गेट से लेता था। हाँ जी। तो अभी इन्होंने गेट से बंद कर दिया है, काफी साल से रिक्रूटमेंट भी नहीं हुआ था, 2 साल से। इसलिए इनको रिक्वायरमेंट तो अभी भी है। जैसे कि अभी मेरे बैच में भी ज्वाइन किए हैं कुछ बच्चे, ESC में चले गए, कुछ बच्चों का दूसरी जगह हो गया सिलेक्शन, कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं है लोकेशन कंस्ट्रेंट की वजह से। तो ये लोग जो छोड़ रहे हैं वो वैकेंसी फाइनली ऐड हो जानी है, अगले जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसमें ऐड होनी है। राइट राइट तो राइट। मे भी आपकी वैकेंसी जो अभी निकाली हुई है उसमें ऐड हो जाए वैकेंसी फाइनली। मतलब तो वैकेंसीज बढ़ती है, कम तो होने का चांस नहीं है, बिकॉज जो निकाली है इन्होंने वो तो है ही, प्लस हाँ, और बढ़ने का चांस होता है। हाँ, बढ़ने का चांस पूरा पूरा रहता है। और वेटिंग भी क्लियर होती है, जैसे हमारे में भी वेटिंग भी रहती है, उसमें वेटिंग भी क्लियर होती है, आप वेटिंग पे भी रिलाई कर सकते हैं। अगर आप कट ऑफ फाइनल मेरिट में कट ऑफ से थोड़ा भी नीचे है ना, तो रिलाई कर सकते हैं वेटिंग में, अच्छा। क्योंकि वेटिंग भी अभी यहाँ पे 5 से 6 लोगों को क्लियर हुई लास्ट ईयर। अच्छा। हाँ, तो वेटिंग भी वेटिंग पे एक भी रिलाई बनाते हैं। कर। चलो, दैट इज और ये वंडरफुल वंडरफुल इंफॉर्मेशन। यस सर, और ये जनरल कैटेगरी 148, EWS 143 आउट अच्छा। ऑफ 170। यस सर। 143 OBC, लास्ट ईयर और 148। यस सर, और OBC आई थिंक 144 OBC कैटेगरी, तो आई मतलब थिंक 143। 145 के ऊपर नंबर चाहिए 170 में से, ये बोल सकते हैं। यस सर, EWS OBC एंड जनरल। यस सर, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स है सर। इसमें क्या अच्छा। नॉर्मलाइजेशन भी होता है, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, मैकेनिकल ब्रांच राइट बहुत बड़ी है, तो 2 शिफ्ट में ये लोग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो राइट। उसमें नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आता है। तो वो शिफ्ट वाइज पे डिपेंड करता है डिफिकल्टी ऑफ पेपर पे। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ये आपको बता रहे हैं, हो सकता है मे भी किसी के मार्क्स 145 ही रहे होंगे 170 में, फिर भी उसके मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 150 हो गए होंगे। तो ये अच्छी नॉर्मलाइजेशन। ज्यादातर सीटें तो मैकेनिकल की ही होती हैं। हाँ यस सर, मैकेनिकल की होती है ज्यादातर सीटें। और क्योंकि ये मार्केटिंग बेस्ड कंपनी, सप्लाई मतलब उसके कम सेल्स बेस्ड कंपनी है, तो काफी ज्यादा इनको रिक्वायरमेंट भी होती रहती है, क्योंकि जैसा आपने बताया लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब ये एक ट्रबल है महारत्ना कंपनी या किसी भी बड़ी कंपनी में कि जो टैलेंट है वो बेस्ट होता है। अब आप जैसे लोग जाएंगे तो जैसे जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इधर उधर, तो लोग फिर ऑब्वियसली उनको लेते हैं। वो ये भी एक चीज चेंज है करते बहुत। रहते हैं, हाँ, चेंज करते रहते हैं, और ये किसी भी कंपनी में ट्रू है। तो वैकेंसीज क्रिएट होती रहती हैं, और क्रिएट दैट इज द होते बेस्ट रहते हैं। पार्ट। दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो अभी आपकी तरफ से ना 3-4 बहुत अच्छे पॉइंट्स आए हैं आशीष। एक पॉइंट तो ये आया है कि भाई साहब अगले 2 महीने जब तक एग्जाम है तब तक आप पूरी तरह से HPCL पे फोकस करो। गेट वगैरह जो है उसके बाद भी टाइम यस आपको सर। मिलेगा, नंबर 1। दूसरा, आपने बताया कि 1 पॉइंटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब आपका 1 मार्क क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं, वो क्वेश्चन जो गेट में आते हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज के आते हैं, उस तरीके का हमारा पैटर्न रहता है। तीसरा, आपने बताया कि नॉन टेक्निकल टेक्निकल है तो इक्वल वो आपको फोकस करना पड़ेगा उस चीज के लिए, और उसकी तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी। ये भी आपकी तरफ से एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया है। चौथा, आपने जो पॉइंट बताया था कि टेस्ट साथ साथ लगाओ,
क्योंकि ऐसा कोई आइडियल टाइम नहीं आएगा जब आप बोलेंगे भाई साहब मेरा सब कुछ तैयार हो गया मैं टेस्ट लगाऊं, तब तक काफी लेट हो जाता है लेट और हो बच्चा जाएगा, वेट ही करता रहता है उस सिचुएशन में, और वो सिचुएशन कभी आती नहीं है एक्चुअली, नहीं क्योंकि आता है। सिलेबस इतना ज्यादा है कि आपको फील कभी नहीं आएगा कि मेरे को सब कुछ टिप्स पे आ गया। वो एंड फिर आ जाता है आप, कि सिलेबस ही रिवाइज कर लेते हैं, टेस्ट देने की जगह सिलेबस ही रिवाइज कर लेते हैं, हाँ लेकिन वो नहीं हाँ, करना है। वो नहीं, एक्चुअली क्या होता है लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर टेस्ट लगाएंगे, इनफैक्ट इट इज रिवर्स, टेस्ट लगाओगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा एक्चुअली इज रिवर्स। यस सर, जब तो जब गलतियां आपकी सुधारोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ आशीष की, अभी जैसे हम लोग बहुत से बच्चों को एज अ टीचर आई कीप ऑन इंटरेक्टिंग एंड मेंटरिंग देम। स्टूडेंट्स दो तरह के हैं, एक तो ऐसे जिनकी सब तैयारी अच्छी है, ऑलरेडी अच्छी है, 2-3 साल से वो लगे पड़े हैं और उनका प्रिपरेशन है, जैसे आप जॉब कर रहे थे साथ साथ आप एग्जाम भी निकाल रहे थे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 6 महीने पहले तैयारी स्टार्ट किया है अपना, मे बी उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, दो दे आर प्रिपेयरिंग बट 5-6 महीने से ज्यादा नहीं हुए। वो लॉट ऐसा है जो एग्जाम निकाल सकता है, लेकिन दिमाग में बात ये आ गई कि भाई साहब ये जो साथ वाला है ये तो 3 साल से तैयारी कर रहा है, मैं तो 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, ये आपको आगे जाने से रोकती है, नंबर वन। यही नेगेटिव थिंकिंग मेरे को उन बच्चों में भी दिखती है जिनका कट ऑफ पे क्लियर होता है, और सवेरे में 2 बच्चों से ऐसे इंटरेक्ट कर चुका हूँ जिनका कट ऑफ से 0.5 मार्क्स ज्यादा था, आज एचपीसीएल में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका कट ऑफ से 0.5 ही ज्यादा था, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने जीटी भी निकाल लिया, इंटरव्यू भी निकाल लिया, और आज वो एचपीसीएल में अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो इस मेंटेलिटी से आशीष कैसे बाहर आ सकता है स्टूडेंट? मैं तो एज अ टीचर बोलता रहता हूँ कि भाई साहब जब कोई एग्जाम भर दो तो 100% एफर्ट से लगाओ, फिर बाकी चीजें छोड़ दो। आपकी तरफ से एडवाइस चाहता हूँ। सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि जो बच्चे अभी लेटेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है जिन्होंने, वो उनको मत देखे जो प्रीवियस कर चुके हैं प्रिपरेशन, क्योंकि कंपैरिजन में ना ये पड़े। उनके उनके उसमें ना पड़े, क्योंकि मे भी क्यों उनको इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि लोग जल्दी निकाल लेते हैं, क्यों लग रहा है, इसके पीछे भी कोई रीजन हो सकता है हाँ, कि उनको शायद वो अपना उनके बिजी कॉन्सेप्ट है, टाइम नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं बिजी है, कोई फैमिली में बिजी है, कोई किसी काम में बिजी है, या कोई अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। ये भी ऐसे लोग भी होते हैं जो टाइम पास करते रहते हैं, हाँ घर जी, से हाँ जी, पैसे लेते हैं, प्रिपरेशन बिल्कुल कर रहे सही हैं है, लेकिन टाइम पास करते रहते हैं। सही है। उनके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उनका इसी वजह से टाइम, इसी वजह से एग्जाम नहीं निकल रहा है, इस वजह से 2 साल से एग्जाम नहीं निकल रहा है, मे बी यही रीजन हो सकते हैं। तो आप उनके उनके चक्कर मत पड़े, ये एग्जाम आसानी से निकल सकता है। अगर आप 5 महीने या 3-4 महीने भी अच्छे से देंगे, टेक्निकल सही पोर्शन नॉन टेक्निकल, तो आप निकाल सकते हैं इसलिए एग्जाम। सही है। तो उनके उनको देख के आप ये मत सोचे कि इतने साल से वो लगे हुए हैं तो हमारा क्या होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप बहुत सारे एग्जाम्पल, एचपीसीएल एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप कट ऑफ भी निकालेंगे तो इसमें जीटी और इंटरव्यू बहुत मैटर करता है, क्योंकि ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जिनका रिटर्न में 170 में 164 थे, ऑल्दो दे आउट फ्रॉम द जीटी। तो आप ऐसा, और जिनका 147 148 था, वो भी, उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो आप ये मत सोचे कि आप टेक्निक, मतलब आपका रिटर्न अगर कट ऑफ भी निकल रहा है फिर भी आपका सिलेक्शन चांस है। तो ये मत लेके बैठे कि वो इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मेरा नहीं होगा। आपका भी होगा, मे भी उनका नहीं होगा, आपका हो जाएगा। तो ये मत सोचे और तैयारी करते रहे। मेरा यही पॉजिटिव होके सजेशन लगे है, रहें, ज्यादा क्या सोचना है, बस पॉजिटिव होके लगे रहें। पॉजिटिव होके लगे रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एचपीसीएल एक ऐसा एग्जाम है जिसमें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि सही, इसमें जीटी। ऑब्वियसली लास्ट में ग्रुप टास्क वाले दिन तक, और इनफैक्ट कईयों ने हाँ मुझे ये बताया कि सर मेडिकल में भी कुछ लोगों की छटाई हुई है, मेडिकल में हाँ, भी। मेडिकल में भी छटाई कर देते हैं, जो तो कलर ब्लाइंडनेस को लेके छटाई कर देते हैं। ये तो इनफैक्ट आप, मेडिकल के बाद भी पूरी लिस्ट बनेगी, आपके सारे मार्क्स जुड़ेंगे और उसके बाद सिलेक्शन फिर फाइनली आपको मिलेगा। तो यस इंटरव्यू सर, में यस सर, बाहर जा किसी सकते हो, पॉइंट ऑफ जीटी में। टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि, हाँ, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नहीं कह सकते मेरा सिलेक्शन सर्टेन है, हो ही जाएगा, क्योंकि हर राउंड इसमें एलिमिनेशन है। सही है। तो इसका यही होता है कि अपना बेस्ट देते रहो और ज्यादा इधर उधर का कंपैरिजन मत मारो। सो दैट वाज अ वंडरफुल कंपेरिजन मत मारो। वंडरफुल इंटरेक्शन आशीष। अब लास्ट में मैं आपका दोबारे वही क्वेश्चन फिर आपसे एक बार पूछूंगा आशीष के, जो स्टूडेंट अभी गेट की भी तैयारी कर रहे हैं, फेब में गेट होता है और अभी जुलाई चल रहा है, गेट का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, एचपीसीएल का एग्जाम आ गया लास्ट में, दो यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन बट आई स्टिल वांट टू एंड अप माय इंटरेक्शन ऑन दैट क्वेश्चन ओनली, कि उन स्टूडेंट्स को फाइनली आपकी तरफ से क्या एडवाइस है कि जो गेट का भी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी करना चाह रहे हैं, अब एचपीसीएल भी आ गया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री जो है वो फरवरी में है, गेट भी फरवरी में है, और ये एचपीसीएल भी आ गया अभी तुम्हारा, तो क्या एडवाइस रहेगा आपका वेरी प्रिसाइज टू स्टूडेंट्स? मेरा एडवाइस ये रहेगा, जो तीनों चीजों में काम कॉमन चीज है, जैसे एप्टीट्यूड कॉमन चीज है, तीनों ईएससी में भी प्रिपरेशन में कॉमन चीज है, सही गेट है, में भी कॉमन चीज है, एचपीसीएल में कॉमन चीज, तो सही है, एप्टीट्यूड पोर्शन को आप कवर कर लीजिए, ऐसा कवर कीजिए कि आपको बाद में वहां पढ़ने की पढ़ने की जरूरत नहीं जरूरत पड़े। ना पड़े।
जरूरत वो टाइम में आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एएससी में भी हो जाए, गेट में भी हो जाए। सही तो है। इस टाइप का एप्टीट्यूड अभी आप पढ़ लीजिए। बाकी जो थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी चीज आपको गेट में भी फायदा करेगी और एएससी में करेगी, थ्योरी आप पूरा कवर कर लीजिए, तो वो गेट वो एचपीसीएल के एग्जाम में लगभग 50% आपका कवर कर देगी। सही है। तो थ्योरी आप पढ़ लीजिए, एप्टीट्यूड आप लगा लीजिए, जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो कर लीजिए, थ्योरी आप कर लीजिए। इससे आपका लगभग एचपीसीएल में 170 में से 170 क्वेश्चन में से 120 से 30 क्वेश्चन आपके रेडी हो चुके हैं। 120 से 30 क्वेश्चन अब आपको इंच करना है, वो जो एक्स्ट्रा 30 क्वेश्चन है उसके लिए आप 1-2 महीने अभी गेट पे जो लेंथी क्वेश्चन है उस पर फोकस ना करके ये वन लाइनर पे फोकस करिए। तो आपका यहाँ से एचपीसीएल में 150 से 160 के बीच में प्रिपरेशन रेडी है, और आपका आगे का टाइम पूरा जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उस पर आप दे सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी के साथ आप काम करेंगे तो तीनों चीजें आपकी साथ साथ प्रिपेयर हो जाएगी। अच्छा आशीष, ये जो आपका पेपर अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो क्या स्टाइल होना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने का? क्योंकि जिन पेपरों में नेगेटिव मार्किंग होती है उनमें कुछ छोड़ने भी होते हैं हमें, लेकिन यहाँ तो 170 के 170 अटेम्प्ट करने चाहिए, तो क्या तरीका होना चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने का? सबसे पहले तो एप्टीट्यूड पोर्शन को देखना चाहिए। पहले अटेम्प्ट करने में सारे क्वेश्चंस को एक बार आपको देखना चाहिए, जो 170 क्वेश्चंस है फर्स्ट टाइम में। लगभग आधे घंटे में आपका वो पूरा आधे से 45 मिनट में आपका हो जाएगा। तो उसमें क्या है, सडन क्लिक करते हैं बहुत से क्वेश्चन, हाँ चलो ये आंसर सही होगा, तो उस फेज में आपका लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हो जाएगा उस फेज में, और भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि बहुत से थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं अपने मैकेनिकल के, जो आपको वन लाइनर रहते हैं, आपको पता ही है यही आंसर है। तो एक व्यू आप लीजिए पूरे पेपर का, उससे आपको पेपर का भी आइडिया होगा और टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया लग जाएगा, कहाँ पे हमें ज्यादा टाइम देना है, और आपके उसी फेज में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हो भी जाएंगे। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा पहले एप्टीट्यूड करना चाहिए या पहले मुझे टेक्निकल अटेम्प्ट करना चाहिए। तो वहां से आइडिया आपको, जैसे मुझे आइडिया लग गया कि मुझे टेक्निकल अटेम्प्ट करना चाहिए पहले राउंड में, तो मैंने टेक्निकल अटेम्प्ट किया, आउट ऑफ 85 आई गॉट 79 मार्क्स। तो वहां पे टेक्निकल मैंने अटेम्प्ट किया, उसके बाद एप्टीट्यूड अटेम्प्ट किया, और फाइनली लास्ट में जो क्वेश्चन आपके मिस हो रहे हैं तो उसको आप नोट उसमें आपको दिखाई पड़ेगा जो आपके मिस हो रहा है। फाइनली आप 10 to 15 मिनट्स में उन क्वेश्चन को भी वापस जाके देख सकते हो उसमें भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टार्टिंग में अपने को क्लिक नहीं करता, लेकिन जब लास्ट फेज आता है एग्जाम का, हो सकता है उसमें 5 क्वेश्चन छूट रहे हैं, उसमें 2 आपके क्लिक कर जाओ, सही हो जाए, तो 3 ही बचे हुए। तो ये स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे तो आई थिंक आपका एग्जाम अच्छा होगा। वंडरफुल Ashish, it was a wonderful interaction and a lot of information has come from your side, which I summarized earlier also. And मेरे को आई एम श्योर कि अगर जो स्टूडेंट इसको सुनेगा पूरे इंटरेक्शन को, उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है और उसको बेनिफिट होगा आपके पूरे पॉइंट्स से। So I again thank you Ashish for giving your this time to me this morning, and I wish you all the very best in your job. Thank you. Thank you sir.